अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है ये महामुकाबला, जो कि स्वर्ण पदक के लिए होगा। जी हाँ, शुरुआत हो गई है, इशारा कर दिया है अजय सिंह ने। Good work there from Harshul Rahman taking the ball. Now there's a chance here, a chance for the University of Calicut. The cross comes in here from Midlaj on the right, but this was again straight to the goalkeeper. There you see, beautifully passed. Midlaj has also taken it very well on his run, and his right footer goalless between the University of Calicut and the Guru Nanak Dev University. इसमें निर्धारित समय पर अगर हार जीत का फैसला नहीं होता है तो सीधे पेनल्टी शूटआउट से इस मुकाबले का फैसला किया जाएगा। इस बहुत मेहनत की दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने, निश्चित रूप से उनके फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने। And it will be Guru Nanak Dev University's Harsh Tiwari. 5 chances for each team. Ajay Singh whistles. And Harsh Tiwari ready to take that kick and scores. There you see, targeted the right end corner and placed the ball very well there. और अब नंबर 11 अरशद, और अरशद ने भी कर दिया है बराबरी का गोल। अभी तक कोई भी गोल मिस हुआ नहीं है, कोई भी गोल मिस नहीं हुआ है अभी तक। Is he placing it in? Oh, it's a save! It is a save by Liaquat Ali Khan, given University of Calicut a hope that they can win this gold medal again. They can be the defending champions. Look at the happiness on Liaquat Ali Khan's face. हर्षल रहमान, ये गोल हो जाना चाहिए, निश्चित रूप से बढ़त प्राप्त कर लेगी। और हर्षल रहमान ने ये निर्णायक गोल कर दिया है और इसी के साथ 5-4 से इस मुकाबले को जीत लिया है। यहाँ पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट केरला ने। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के बीच में मुकाबला। पहली यहां पर मद्रास की आती हुई, जिस तरह से अच्छी सर्व थी। मौका यहां पर क्या नीतीश कुमार बनाएंगे, ताड़ा है, लताड़ा है, लेकिन दूर। और जिस तरह से वहां पर कोशिश की थी शिवशंकरन ने, प्रयास कर रहे थे, इस बार थोड़ा सा तेज पंच था। मौका बनाएंगे, डबल ब्लॉक को तोड़ेंगे। पॉइंट्स कभी यहां तो कभी वहां जा रहे हैं। डबल ब्लॉक के बिल्कुल बीच में से खेला था। Madras University, for them, they do have the experienced campaigner Nanjil Surya. Spike, intelligent stuff. Siva Sankaran is the man hitting on the right target. Advantage for University of Madras. Set point, Jerry Daniel. Will he do that or not? Someone is going for this. Nanjil Surya, setup created, spike, and set point done. 25-19, so which means University of Madras again getting the lead in this match. So there is a high possibility of chances. So Guru Nanak Dev University, they do have a lot of responsibilities in this match to fight back. Now the counter attack from Arok Abhishek. So he says that you have Suraj Chaudhary in your head means, boss, if you're bad, I'm your dad. हर्षित कुमार हैं, यहां पर तड़का आएगा। मौका बना था नेट के पास, सेट अच्छा करके दिया था बिल्कुल सेंटर में। अच्छी सर्व बिल्कुल सेंटर में हर्षित के पास, बाहर खेला है, बाहर खेला है, किसी के हाथों को लगी नहीं है, यही देख रहे हैं। और अभिनव वहां पर जिस तेजी के साथ खेला था, किसी का संपर्क नहीं आया था। अच्छी सर्व थी, मौका बनाया और जीत लिया है यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने यह मुकाबला। ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम पर किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विनर इस समय ब्रॉन्ज मेडल के यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। और जिस तरह से ये पॉइंट यहां पर जीता, 25-21, 25-19
23-25 और 25-21 के साथ। Lovely Professional University versus Kalinga University Bhubaneswar. So if our cameraman is showing the second referee in the sense, I will be calling out his name correctly. Match has started. Grand finale. Lovely Professional University versus Kalinga University Bhubaneswar. Red versus blue. Who is going to win in this battle? Emotions is everywhere and the crowd is getting more and more inside this arena. 7 got the momentum here and still at the backward. Bhavana is to support. What a rally, what a rally. At the very first point, taken it. They have got that ability. What an agile from the Kalinga. Wow, oh my word, one of the best rally ever seen. It's all happening in the grand final and still the ball is in the play. Is there anything special to watch out in the first point? Who is going to get the first point? So that is the biggest question right now. This rally is getting continued. Not even in the league stage. Libero, Bhavana. Big one! Came from the Lovely Professional University, but it went out. और जॉन, इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी रैली होगी यदि हम देखें तो किसी भी गेम की तुलना में। सर्व करने के लिए यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से प्रीति नायक आई हैं। 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है यहाँ से इस सेट को अपने नाम पर करने के लिए, लेकिन कलिंगा यूनिवर्सिटी कोशिश करनी होगी आपको कि आप इस सेट में आए, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर मीनल बेन के बगल से गेंद को निकाला था मधुमिता वहाँ पर थी, और ये पॉइंट जिस प्रकार से आया बहुत ही बेहतरीन, शानदार। और तनिषा जी वहाँ पर, तनिषा इस प्रकार के खेल को दिखाती चले आई हैं, यही उनका कर्तव्य है, यही उनका कमाल है, जिस तरह से वे दिखाती हैं। इस बार बाएं हाथ का कमाल करने की कोशिश वहाँ पर कर रही थी मधुमिता, लेकिन इन रही है गेंद और यहाँ पर पॉइंट, और कुल मिलाकर ये सेट आता हुआ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम पर 25-14 के साथ। ये आखिरी पॉइंट इस सेट का जिस प्रकार से आया सेट पॉइंट के रूप में, और 25-14 यहाँ पर दिला गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को। खुशियों के साथ कोर्ट के बाहर निकल रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की टीम। सौम्या अंदर की तरफ आई हैं, यह सर्व इंपॉर्टेंट है, क्या यह सर्व इस मुकाबले का आखिरी सर्व होगा? मैच पॉइंट पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। कलिंगा यूनिवर्सिटी, और जी हाँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने यह मैच जीत लिया है। गोल्ड मेडल का मैच, स्वर्ण पदक का तमगा अपने गले में। भावना, सुमन, जिस प्रकार से यहाँ पर सुमन ठाकुर कोर्ट को नमन कर रही है और ईश्वर से धन्यवाद दे, आशीर्वाद ले रही है, धन्यवाद दिया ईश्वर का कि जिस प्रकार से ये मुकाबला 5वें सेट में कड़े इम्तिहान के बाद समाप्त हुआ है। जॉन, दिल की धड़कन आपकी भी बड़ी है। कुल मिलाकर 3 एथलीट तेजस्विन लम्काने, रवीना विजय गायकवाड़ और बुशरा खान। शुरुआत होती हुई यहाँ पर 10,000 मीटर रेस की। मौसम काफी ठंडा है यहाँ पर जयपुर में, तकरीबन 11 डिग्री का तापमान, शीतलहर चल रही है और ऐसा लग रहा है कि आप 5 या 6 डिग्री का फील ले रहे हैं यहाँ पर। बिजनेस एंड पर आ चुकी है ये रेस, आखिर के 350 मीटर की रेस बाकी है। रवीना विजय गायकवाड़ अब भी लीड पर हैं। क्या बुशरा खान के टैंक में वो ऊर्जा है? जी नहीं, बुशरा और रवीना विजय गायकवाड़ के बीच तकरीबन 300 मीटर का अंतर है। Well, she's just about 50 meters away from the finish now. Look at her now darting down. There, she will take the gold. And Anand, what a gold medal this will be for her. The SAF gold for her just a few weeks ago. And now she takes the 10,000 meters here in the Khelo India University Games 2025. बेहतर प्रदर्शन, रवीना विजय गायकवाड़ गोल्ड मेडलिस्ट, बुशरा खान सिल्वर मेडल और तेजस्विनी लम्काने ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो फुल
compliment here in the javelin for the men, which is a heartening feature. Final round up there, the acceleration, the javelin hold, and then finally the positioning, which is so important. He's run quick there. He's made sure that those strides were good enough for him to keep up the feet, to build up. उत्सव का ये आखिरी अटेम्प्ट 68 मीटर से कम का अटेम्प्ट है उत्सव का। पोडियम फिनिश के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा वहां पर उत्सव को। अपने प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं उत्सव। अच्छा रनअप, अच्छा बेंड, फोर्स जनरेट किया, अच्छा रिलीज, लेकिन वो डिजायर्ड डिस्टेंस हासिल करने में असफल हुए हैं। शशांक पाटिल रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी कर्नाटक के और इस इवेंट के क्लियर फेवरेट माने जा रहे हैं। शशांक, बढ़िया एलिवेशन, लेकिन हम डायगोनल पोजीशन पर हैं। ऐसा हो सकता है ये 72 या 75 मीटर के आसपास का भी थ्रो हो सकता है। दोबारा देखिए, शशांक पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता है 71.88 मीटर के साथ। So the 800 meters where you got a compliment of just one of them did not report. Rekha Basappa, Amandeep Kaur, Riya Nitin Patil and Sadhna Chaudhary. अमनदीप कौर इस समय सबसे आगे हैं और बेब नंबर 329 रेखा पिरोजी इस समय दूसरे स्थान पर हैं। रेखा पिरोजी दूसरे स्थान पर और अमनदीप कौर यहां पर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होती हुई। साथ ही बेब नंबर 329 रेखा पिरोजी ने जीता है यहां पर सिल्वर मेडल। बेब नंबर 454 रिया नितिन पाटिल शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बनी हैं। $800 meters for the men. शुरुआत हो गई है पुरुषों के 800 मीटर रेस की। A strong start that you're looking out there as they now come into the inside. The advantage is slipping away slowly but surely. एक तरफ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं मोगली वेंकटराम रेड्डी, दूसरी तरफ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन हैं बिजॉय। मोगली वेंकटराम रेड्डी फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हुए उनको पुश कर रहे हैं बिजॉय, लेकिन वेंकटराम रेड्डी के पास एडवांटेज है। गोल्ड मेडल उनकी तरफ जाता नजर आ रहा है। मोगली वेंकटराम रेड्डी 800 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं। This is where he started well. Anand, those 2 medals that you mentioned about have stood him in good stead. The confidence always stayed with him. And then finally, he had the controlled action to finish it off. I'm sure with Reddy there, 151.62, there's not much of a difference. They will start off with a total of 5 of the athletes out of the 7. शुरुआत होने जा रही है पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेस की। शुरुआत होती हुई यहाँ पर कुल मिलाकर 5 एथलीट हैं। Well, that's the first lap that you're going to look at. It's partial lap, and that's a lap without any obstacles. Look at that curvature there. रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को पार करके अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना इन एथलीट्स का मुख्य उद्देश्य है। बिहार की उम्मीद विकास पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड होल्डर नागराज ने अब गति बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन उनके ठीक राइट शोल्डर पर हैं विकास। मनोज और सौरभ भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ये आखिरी वाटर जंप जाता हुआ और अब देखिए तेजी आ गई है। अब देखिए नागराज विकास दिवाते ने तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। जो आपको सामने नजर आ रहे हैं वो एक लैप के डिस्टेंस में बिब नंबर 390 सौरभ सबसे आगे हैं। अब गति भी है, तेजी भी है। क्या नागराज यहां फिनिश करेंगे? टॉप फिनिश करने के करीब नागराज। यहां पर नागराज के नाम जाता हुआ गोल्ड मेडल। सौरभ ने जीता है यहां पर सिल्वर मेडल। विकास के नाम गया है यहां पर ब्रॉन्ज मेडल। दूसरा मेडल इस यूनिवर्सिटी को नागराज वेंकटेश दिवाते 9 मिनट 52.93 सेकंड की टाइमिंग।
Starting at the far side, the 100 meters, the partial first round will have no obstacles, and from there on the 28 obstacles and the 7 water jumps will come into play. These athletes, as they now approach the first of the water jumps out of the 7, they are focusing on a good position there. They're making sure that they accelerate towards the first hurdle to gain the momentum to clear the hurdle. प्राची देवकर सबसे आगे नजर आ रही हैं और न सिर्फ आगे नजर आ रही है बल्कि लीड की कंसिस्टेंसी देखिए, वो लगातार अपनी बढ़त को बढ़ाती चली जा रही हैं। लाजवाब प्रदर्शन प्राची देवकर का, बहुत बेहतर तरीके से मनीषा इस समय दूसरे स्थान पर हैं वाटर जंप को क्लियर करती हुई, लेकिन इस समय प्राची देवकर ने यह बता दिया है कि उनके पास एक अलग शैली है। भले ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मीट रिकॉर्ड ना बना पाया, लेकिन प्राची देवकर फिनिश लाइन की तरफ बहुत तेजी से जाती हुई गोल्ड मेडल उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज महिलाओं की कैटेगरी में अपने नाम किया है। साथ देंगे हम। 4x100, that's the lineup. जैन यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच हमें लगता है कि टफ फाइट हो सकती है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। शुरुआत होती हुई और यहां पर बढ़िया बैटन एक्सचेंज पंजाब की तरफ से नजर आता हुआ। आउटसाइड लेन में, लेन नंबर 8 में सावित्रीबाई फुले भी टफ फाइट देती नजर आ रही हैं। Well, you're looking also at Mangalore and Jain Strong as they take the third of the exchanges out here, past the 200-meter mark. Now coming to that final bend out here. They're all crouching low. Is it lane number 2? Lane number 2 is the team from the Mangalore University. It's 3 and 4, I suspect. That's Guru Nanak and Calicut. कीर्तना इस समय सबसे बड़ी लीड पर हैं। मैंगलोर यूनिवर्सिटी की तरफ से दीक्षिता ने बढ़त बना ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पर नजर रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को पीछे छोड़कर मैंगलोर यूनिवर्सिटी की दीक्षिता ने अपनी टीम को जिता दिया है गोल्ड मेडल। That's the start. Lane number 3 it is. Was it Jain 3 or was it 6? Once again Punjab. जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक 47.22 सेकंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल उनके नाम। साथ देंगे हम। We will now come up to the final event, which is the 4x100 meters relay for the men. शुरुआत हुई है यहां पर 4 गुना 100 मीटर। नजर रखे किड्स पर, किड्स को बढ़िया स्टार्ट मिला है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं है। पहला बैटन एक्सचेंज किया है जेने यानी शिवाजी यूनिवर्सिटी इस समय लीड पर। अनिमेश कुजूर सेकंड लेग में किड्स को बढ़त दिलाते हुए, किड्स सबसे पहले सेकंड बैटन एक्सचेंज करने वाली टीम बन गई है किड्स की टीम, और किड्स ने अब बैटन सौंपी है अभय सिंह को। अभय सिंह सबसे आगे किड्स के लिए चलते। Dondapati now comes into play. He's got that lead. Look at that hairstyle. It's going to stand him in good stead. The last 50 meters now. Dondapati is going strong. He'll take it away. We've got... Well, he takes it away for sure. डोंडापति ने किड्स को दिला दिया है गोल्ड मेडल। अनिमेश कुजूर ने उस बढ़त को बहुत बड़ी कर दिया था और वहां पर अभय सिंह ने उस लीड को और बढ़ाया और फिर डोंडापति ने किड्स को दिलाया 4x100 का गोल्ड मेडल। किड्स ने नया मीट रिकॉर्ड बना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। 40.06 सेकंड, 40.09 सेकंड नया मीट रिकॉर्ड यहां पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने बनाया है। 40.09 किड्स। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम के नाम गया है सिल्वर मेडल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट केरल ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कमाल का प्रदर्शन। साथ देंगे हम। लड़कियों के वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल मैच क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कर्नाटका बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। बल्कि 2 इरादे ये इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या बात है, बैक टू बैक दोनों ही टीमें अभी खाता खोलने का इंतजार करते हुए फिलहाल 3 पॉइंटर के लिए, और यहां पर भी नजर पंजाब की ब्रोंज पर, और इसी के साथ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी खाता खोलते हुए 2-0 से बढ़त बनाते हुए इस ब्रोंज मेडल के मुकाबले में। क्या बढ़िया शुरुआत है वीरेंद्र, यहां पर बेहतरीन, बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए जो रोक के रखा है यहां पर, जिसे कहते हैं ना राजेश, लगाम लगा दी, और यहां अब 2 पॉइंटर और आते हुए क्राइस्ट के लिए।
जर्सी नंबर 12 में चंदा गौतम 3 पॉइंटर और इसी के साथ हुटर की आवाज। Once again, the ring rejects that attempt. And here come Punjab. They need some support on the transition. Yet another basket. How the fortunes have turned. 15 पॉइंट अब तक इस क्वार्टर में बना लिए है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने, और जबकि सिर्फ 3 पॉइंट अर्जित किए हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने, और इस वक्त ये 2 पॉइंट और मिले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। And here comes Punjab University. Once again, quickly coming through in the transition. Oh, there's a three-pointer sunk from the outside. Maintain it. I hope this is quarter 3 and we will see a more close game, a tussle amongst both the players of Punjab University and Christ University. A floater by who it is? This is the Komalpreet Kaur. मात्र 18 सेकंड बॉल पोजीशन में यहाँ पर कोमलप्रीत कौर के अटैम्प्ट लेना चाहती है। अटैम्प्ट लिया साइड और अब ऐसा लगता है कि टाइम पास करना चाहती है। ये देखिए क्या अटैम्प्ट लेगी, मौका बनेगा। यहाँ से 2 पॉइंटर के लिए जा सकती थी, गई नहीं है। नादर खान ढिल्लन अटैम्प्ट लिया जरूर और इसी के साथ यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 55 के मुकाबले 47 अंकों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने हरा दिया है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को। 8 अंकों से यहाँ पर जीत दर्ज की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। Right by Punjab University. तो पहली रेड इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले की और पहला ही अंक पहली ही रेड पर। राइट फ्लैंक से शुरू करते हैं अपनी रेड को और इस बार कोशिश 2 खिलाड़ी 2 को लेकर आए हैं, 2 पॉइंट लेकर आए हैं। जी हाँ, लंबे कद के खिलाड़ी उन्हें आगे बढ़कर डिफेंस कर रहे हैं। बॉक लाइन के नजदीक कोशिश कर रहे हैं, बॉक लाइन क्रॉस ना कर पाए लेकिन पप्पू नहीं मानने वाले, उन्हें नहीं रोका जा सकता। इंपॉर्टेंट रेड और फिर से स्कोर बराबर, फिर से स्कोर बराबर। नंबर 9 7 का डिफेंस उनके सामने। क्या करते हैं हिमांशु इस रेड पर? आगे निकले और घेर लिए गए और निर्णय आया है और अंततः इस मुकाबले में 1 अंक से रोमांचक जीत दर्ज करके पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पुरुष कबड्डी स्पर्धा के पहले सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत होगी। इस पहली रेड के साथ हो रही है जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ी द्वारा की जाएगी। नंबर 6 गए हैं दूसरे सेमीफाइनल की पहली रेड। मोहित कुमार लेग किक के 2 प्रयास लेकिन सफल नहीं और इस बार लेफ्ट कॉर्नर। महत्वपूर्ण खेल, ऐसे में अयान के लिए कोई मुश्किल नहीं होती कभी भी। सुपर टैकल ऑन है, अयान को पकड़ा गया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे लेकिन यहाँ अयान नहीं मानने वाले हैं। इस मोमेंटम को हासिल करने की सोच में जो अब तक मिल नहीं पाया उन्हें। नंबर 5 जर्सी नंबर 5 यहाँ पर 1 अंक अर्जित करने में कामयाब जरूर हुई क्योंकि 6 खिलाड़ी सामने और उनमें से मात दे के बैककोर्ट से वापस आने की सोच थी लेकिन कामयाबी उसमें मिली नहीं। 4 खिलाड़ी इस बार बोनस लेने की कोशिश लेकिन जैसे ही बोनस के लिए बोनस लाइन के आगे पैर ले गए डिफेंस ने फुर्ती दिखाई, पुश किया उन्हें। राकेश इस बार किक लगाया, प्रेशर और देखना है राकेश को, जी नहीं आने नहीं दिया मिड लाइन की तरफ। 1 पॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी। आखिरी 5 सेकंड और शायद ये अंतिम रेड रहेगी और ये संकेत रेफरी राणा रंजीत सिंह का कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत कबड्डी स्पर्धा में पुरुष वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है। और दोनों ही मुक्केबाजों को नियमों से पुनः अवगत कराते हुए 48 से 51 किलो भार वर्ग का ये सेमीफाइनल का मुकाबला, पहला मुकाबला। तेजी के साथ आगे बढ़े हैं यहाँ पर मुकेश।
मयूर, यहाँ पर साफ लग रहा है मुकेश की बॉडी लैंग्वेज से कि वह बहुत डरे हुए से लग रहे हैं. Round number 1 is going to be crucial with 40 seconds remaining. Oh, that's good punch, left and right, and there also came a hook, but that was again in vain because well dodged. That was from Mukesh. How Mukesh was behaving against his opposition during the quarterfinals, I think that has come to the very much fore. 1-2-1 की गेम खेलती हुई स्ट्रेट जैब के साथ यहाँ पर मुकेश ने प्रहारक क्षमताएं अब बहुत तेजी से की हैं. थोड़ी सी छटपटाहट दिखती हुई. यहाँ पर शेल गार्ड रखना बहुत जरूरी है. जब भी अगर आप शेल गार्ड नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा. जैसे कि यहाँ पर देखिए हाथ उठा रहे हैं मुकेश. क्या क्यों कहना चाहते हैं, क्या कोई बात रखना चाहते हैं, ऐसा लग नहीं रहा है. अंतिम 10 सेकंड शेष हैं इस मुकाबले की समाप्ति में. देखना होगा यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को पकड़ते जकड़ते हुए और अंतिम सेकंड खत्म हुए और ये हुटर बजा. अक्षिता जायसवाल अनाउंसर. और रेड कॉर्नर के मुकेश ने इस मुकाबले को जीत लिया है. रजत और रिदम के बीच में अगले मुकाबले की तैयारियां. सुपर हैवीवेट वर्ग का यह मुकाबला. You love Punjabi Tarka, isn't it? यहां सुपर हैवीवेट का मुकाबला है, रजत वर्सेस रिदम. और रजत ने लगातार 2-1-2 का अच्छा प्रयास किया. क्या 1-2 का 4 करेंगे, इस पर नजर बनेगी सबकी. प्रयास कॉम्बिनेशन के जरूर हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस के, लेकिन कारगर उतने ज्यादा नहीं हुए. ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से लेफ्ट जैब किया था खूबसूरती के साथ यहाँ पर रजत लय में आते हुए. Oh yes, why not? The ticket for the final in the men's super heavy 92 kilogram round number 1. Can I tell in Hindi? पटियाला के मेरे एक one pair of जूते थे मेरे पास. चलिए आप ना समझ पाए लेकिन हमारे ऑडियंस जरूर समझ गए होंगे पटियाला का मतलब क्या है और मैं क्या कहना चाह रहा हूं. लेकिन यहाँ बोलना मुनासिब नहीं होगा. यहाँ शेलगेट को भेदा उन्होंने 2 मौकों पर. 2 पंचेस उन्होंने लगाए. 2 पंचेस का अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और रजत की तारीफ करनी होगी. 1-2 लगातार, लेकिन 1-2 का 4 अभी तक देखने को नहीं मिला है. यहाँ लगातार उन्होंने भी 2 हमले बोले थे, लगातार अच्छे पंचेस का परिचय दिया था. रिदम आए रिदम में और यहाँ हम में भी आया है जोश, मयूर में भी आया है जोश और यहाँ काउंटिंग करने के लिए विवश कर दिया रिदम ने. रजत जो बढ़त बनाए हुए थे, यहाँ काउंटिंग हो रही है और नियमानुसार अगर 3 बार काउंटिंग एक ही राउंड में हो जाती है तो मुकाबले को वहीं रोक दिया जाता है. तो ये एक अच्छा प्रयास रिदम का. Very true. We have got ourselves pumped up amidst those punches coming in from Rhythm onto Rajat. One after the other, he has ensured that he goes very, very behind on the ring, gets rebounded. Oh, there's a counting again. This time for Rajat, Manoj ji. एक बार फिर से काउंटिंग होती है तो मुकाबले को वहीं रोक दिया जाएगा और विजयश्री हासिल होगी रिदम को. And the winner in the blue corner representing CTU University, Rhythm.